Welcome back everyone to English Wings. On Killing a Tree by Jeev Patel of WBCHSE English B, Class 12th. So On Killing a Tree is a poem written by Jeev Patel. The summary of the poem. In this poem, there is a beautiful ironic statement written by the poet about killing a tree. Actually, he means its opposite. He taunts how trees are to be killed but they must not. He further says that a tree is hard to kill with the knife. The tree takes years to go from the earth. He says that to kill a tree, its roots must be pulled out entirely from the soil. This poem also conveys a message that the trees are our lifeline, so they must not be killed. He instructs how a tree is killed. He gives out the message that trees are something pious and like human beings. He conveys that the tree is very deep-rooted and cannot be wiped out easily. He indicates and compares it with the evil which also deep-rooted in the surroundings and cannot be uprooted so easily without changing the environment. So summary में जीव पटेल ने ये कहने का कोशिश किया है कि killing a tree, poem का नाम है On Killing a Tree. That doesn't mean that he is appreciating the way to kill a tree. Rather, he taunts, he is sarcastically commenting on the killing of tree. So यहाँ पर उन्होंने killing a tree के बारे में poem लिखा है that, but उनका meaning जो है वो इसका opposite है. That means he tries to taunt everyone, that taunt the woodcutter who cut the trees for their own purpose. So उन्होंने कहा है कि एक ट्री को एक नाइफ से कट करना is just impossible. So एक ट्री बनने में years लग जाते हैं. उसका जो रूट होता है वो अर्थ से अपने सप्लीमेंट को लेकर के बहुत सारे ईयर्स में ग्रोथ में आता है, ग्रोथ होता है उसका. सो जस्ट एक नाइफ के शार्प एंड से क्या ट्री को काटा जा सकता है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ट्री को किल करना है, यू हैव टू पुल आउट द रूट अंडर द अर्थ. सो अंडर द अर्थ से पूरे रूट को तुम्हें निकालना होगा इन ऑर्डर टू किल अ ट्री. सो इससे ये समझ में आता है कि ट्री को बड़ा होने में कितना एफर्ट लगता है और हम कितने इजीली उस एफर्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं. He also gives out a message that trees are something pious. Pious means they are like human beings. They all need to be respected. They need to be treated as a living being. So उन्हें इतनी easily root out करके, उन्हें wipe out करके, उन्हें dead नहीं करना चाहिए. So here is a short introduction of Jeev Patel, who is a very, very famous writer, who comments on the human nature that humans are trying to develop from wiping out the environment only. Jeev Patel is an Indian poet and playwright. His first play was called Princess and it was performed in 1971. He was born in Mumbai and educated at Grant Medical School. He briefly worked as a medical examiner in rural Gujarat before moving back to Mumbai. He currently resides in Mumbai and practices medicine. He is also a painter. As one of the contemporary Indian artists, he has been part of exhibitions around the world. So आपको इतने ऑथर के बारे में इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है. You just have to write 1 or 2 lines about the author in the long answers so that you can present over the overall idea of the poem to the examiner. Next, keywords. First one, jab, that means poke roughly or quickly. Sharp एक वार करना बहुत ही जल्दी से. Consuming, eat, drink or digest. Crust, outermost shell. Leprous means scaly, that means sunburn के कारण जो scaly हो जाता है स्किन जैसा वो. Sprouting, spring up, बाहर निकलना. Hack means cut. Curled means curved or spiral shape. Miniature means very small, किसी भी चीज़ का very small जो चीज़ होते हैं उसे. Bogs means branch. Anchoring means tie up. Snapped means break. Scorching means blazing. Choking, blocked airflow. Twisting, form into a distorted shape. तो twisting का मतलब यहाँ पर form into a distorted shape है. So the poem, the text of the poem. It takes much time to kill a tree.
दैट मीन्स एक ट्री को किल करने में काफ़ी टाइम लगता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. एक नाइफ से सिंपली एक वार करके आप ट्री को कट नहीं कर सकते हो. विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. एक ट्री जो है वो धीरे धीरे अर्थ से अपने सप्लीमेंट्स को लेकर के कंज्यूम करके धीरे धीरे ग्रो किया है. उसने ईयर्स लगे हैं इतना बड़े ट्री बनने में, और आप क्या उसे एक सेकेंड एक नाइफ के जैब से किल कर सकते हो? नो. राइजिंग आउट ऑफ इट. अर्थ से राइज करता है वो, ईयर्स लग जाते हैं उसे. फीडिंग, दैट मीन्स वो अपने सप्लीमेंट्स ले रहा है अर्थ से. अपॉन इज क्रस्ट. अर्थ के जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो वहाँ से निकल रहा है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. सालों तक उसने सनलाइट एब्जॉर्ब किया है, एयर सन एब्जॉर्ब किया है, वाटर एब्जॉर्ब किया है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. लेप्रस हाइड इसलिए क्योंकि उसका जो बार्क है, जब एक ट्री सैम्पलिंग होता है, सैपलिंग एक बेबी प्लांट होता है, तो उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है. बट ड्यू टू द सन का जो हीट होता है, ड्यू टू द स्कॉचिंग हीट, उसका जो ग्रीन स्टेम होता है दैट टर्न्स इनटू अ लेप्रस हाइड. दैट मीन्स स्केली ब्राउन एक स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये लेप्रस हाइड उसे बनने में ईयर्स लगे हैं. स्प्राउटिंग लीव्स. रोज छोटे छोटे लीव्स वहाँ से स्प्राउट करते हैं, दैट मीन्स स्प्रिंग आउट करते हैं. सो हैक एंड चॉप, दैट मीन्स कट एंड चॉप. बट दिस अलोन वोंट डू इट. बट सिर्फ इतना से आप ट्री कट नहीं कर सकते हो. मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. तो आप इसको जो थोड़ा सा पेन दोगे एक नाइफ से कट करके या चॉप करके, तो उसका जो ब्लीडिंग बार्क है, दैट मीन्स जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स के थोड़ा सा भी कट हो जाने से जैसे ब्लड निकलता है, ब्लड ऊज आउट करता है, उसी तरह से ट्री से भी एक तरह का लिक्विड ऊज आउट करता है. तो द ऊजिंग लिक्विड हील्स द ट्रीज, सो दैट विल हील द ब्लीडिंग बार्क. सो आपका वो छोटा सा जो एक वार है वो ट्री को कुछ नहीं कर सकता है. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के पास होकर विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. और वहाँ से क्या निकलेंगे? ग्रीन छोटे छोटे ट्विग्स निकल जाएंगे. दैट मीन्स जहाँ पर भी वो शार्प कट होगा वहाँ से एक न्यू प्लांट निकल जाएगा, न्यू प्लांट का लीव्स निकल जाएगा. मिनिएचर बोक्स, दैट मीन्स छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स का जो पार्ट है वो वहाँ से निकल जाएगा. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन. और अगर उन चीज़ों को ना देखा जाए तो वो और बड़े हो सकते हैं. टू फॉर्मर साइज, पुराने वाले साइज में. नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. यू हैव टू पुल आउट द रूट. सिर्फ एक इस तरह से जो ये पिक्चर दिखाया गया यहाँ पे, इस तरह से एक बार को काट देने से आप ट्री को नहीं मार सकते हो. यू हैव टू पुल आउट द रूट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. जो अर्थ उसे एंकर करके सपोर्ट करके उसे पकड़ा हुआ है, उससे आपको उस रूट को अलग करना होगा. इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड. रोप से आप उसे टाई करो, टाई करके आप उसे पुल आउट करो. पुल आउट एंड स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली. तो आप उसे स्नैप करो, अंदर से पूरी तरह से स्नैप करके बाहर निकाल लो. आउट फ्रॉम द अर्थ केव. जो अर्थ का जो केव है, जो गुफा है अंदर, जहाँ पे वो रूट ईयर्स तक छुपा रहता है, उससे आप उसको निकालो. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. तब उस रूट को देखकर आपको समझ में आएगा कि उस ट्री का कितना स्ट्रेंथ है. द सोर्स वाइट एंड वेट. वो जो सोर्स है, दैट मीन्स द रूट इज वाइट एंड वेट. द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. सालों तक वो अर्थ के अंदर छिपा रहता है. देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर. तब जब आप उसे बाहर निकाल दोगे तो सन एंड एयर में वो जो स्कॉचिंग, बहुत ज़्यादा धूप जो होता है, जो कि अनकॉन्शियस कर देता है इंसानों को भी, वो क्या करेगा? ब्राउन कर देगा, हार्ड कर देगा, ट्विस्ट कर देगा, विदर कर देगा. दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर देगा रूट को. एंड देन इट इज़ डन. एंड देन कटिंग अ ट्री इज़ डन. सो राइटर ने यहाँ पे एक ट्री को कट करने के प्रोसेस पे कमेंट किया है. So if you all like the explanation, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.